So Divya, you've got the opportunity to actually assist the winner of Miss World 2025. How was your experience like? सबसे पहले तो वो बहुत हम्बल थी एंड बहुत कॉन्फिडेंट थी वो अपने काम को लेके। वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, अपना आउटफिट चेक कर रही थी, अपना हेयर चेक कर रही थी। As a students, we felt so proud to represent our college and our country on Miss World 2025. एक कोई particular skill or lesson that Podar College has taught you that genuinely helped you to survive or to shine at this pageant? Hello and welcome to the very fresh episode of Learn and Grow with Podar. I'm your host Aryan Purohit from Podar Media, and today's episode is all about converting dreams into reality. Because we've got our fashion students who've got the massive opportunity to represent India at Miss World 2025. Let's dive into their journey, challenges, and their victory. Hello everybody. Hello. So how's life recently? Recently, life is going very smoothly, everything is going fine, and we got this opportunity to work as a volunteers in Miss World 2025, and everything is going fine. लाइक हम लोगों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला वहाँ पे काम करने के लिए। इतना बड़ा इवेंट था एंड दैट वाज रियली गुड। We enjoyed a lot, yeah. On this, I still remember when I was in class 10th. मैं बस ऐसे ही मतलब लेटी हुई थी एंड आई वाज वाचिंग मिस वर्ल्ड। तो उस टाइम पे अचानक से मम्मी आके बोलती है क्या करेगी, ये सब का मतलब काम ही क्या है तेरा, इनको देखना ही क्यों है तेरे को, जब तेरे को इस फील्ड में जाना ही नहीं है तो तू क्यों देख रही है इन चीज़ों को। सो एट दैट टाइम आई जस्ट क्लोज्ड माई टीवी ऑफ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा मतलब बोलना नहीं था उस टाइम पे। बट नाउ जब मैं वहाँ से वापस आके मम्मी के पास गई तो मम्मी जस्ट हग्ड मी एंड शी लिटरली गॉट इमोशनल एंड सेड कि वेरी गुड, तूने बहुत अच्छा किया इस बार, तूने नाम रोशन कर दिया घर का। So that was the moment I felt so emotional. So basically पूरा mindset ही change हो चुका है, right? So my very first question to you is, we all are aware that Podar College, not just in Rajasthan, but across India gave its students the opportunity to work backstage at Miss World 2025. How did it feel to represent not just your college, but the entire country on such a massive platform? What did your journey truly meant to you? As a students, we felt so proud to represent our college and our country on Miss World 2025 because it was the biggest opportunity for all of us to experience, to learn, to enjoy, to see things, how the chaos looks like. So it was a great experience and we learned a lot. Right. And anybody wants to throw light on your experience? आई थिंक एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस नहीं मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिले। चीज़ों को मैनेज करना पता चला कि मैनेज जल्दी में, मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं बट तुम्हें फिर भी वो चीज़ करनी ही करनी है, यू नो यू हैव टू डू, तो तुम उस टाइम पे कैसे मैनेज करोगे सारी चीज़ें। तुम्हें एक टीम वर्क करना भी आया उस टाइम पे, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे लर्न करी, आई थिंक सो या। तो how to manage the ups and downs. Yeah. So teamwork and pressure handling can be one of the skills you learn. Yeah, right? exactly. तो skills की बात से my next question to you is, एक कोई particular skill or lesson that Podar College has taught you that genuinely helped you to survive or to shine at this pageant? Team management. कम्युनिकेशन स्किल्स, communication skills, patience, mindset, क्विक Mindset. डिसीजंस। quick decision. Correct. You had the chance to work with delegates from over 140 countries. I'm sure that came with a wide range of personalities. Was there a particular challenging individual to work with? And how did you manage the situation professionally? लाइक हमने पार्टिसिपेंट्स के साथ काम किया तो जो मेजर चैलेंज था वो लैंग्वेज बैरियर था, जो मैंने भी फेस किया एंड उन्होंने भी फेस किया। आई थिंक द सेम सिचुएशन हैपन विद अस ऑल्सो। हम लोग एशिया और ओशियाना में थे, उस टाइम पे मिस चाइना थे
तो उनको दिक्कत आ रही थी कि इंग्लिश समझने में बैरियर था एक, Right. तो हमने साइन लैंग्वेज में बोला उनको कि लाइक इज योर हेयर मेकअप डन, तो तब जाके उनको समझ आया। इट्स डन वी वर लाइक अगर कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज बताना इन साइन लैंग्वेज। शी वाज लाइक श्योर वी विल तो एंड में सब वर्कआउट हुई है। Yeah. इट वाज। Okay, great. Life events always bring some sort of chaos, right? Were there any unexpected wardrobe mishappenings backstage? And how did your team manage to handle them under pressure? या दिस इंसिडेंट हैपन्स विद मी बिकॉज लास्ट मोमेंट क्या हुआ कि 5 मिनट बचे थे कि स्टेज पे जो सारे कंटेस्टेंट थे उन्हें पहुंचना था, एंड देयर वाज वन पार्टिसिपेंट जिसको क्या हुआ कि जिन जिप थी वो फेल हो गई है लास्ट मोमेंट। सो वी ट्राई आवर बेस्ट बट वो वर्कआउट नहीं कर रहा था। सो वी गो टू द टेलर मास्टर, ब्रिंग द सुई धागा एंड वी जस्ट डन एट द लास्ट मोमेंट। सो शी वॉज हैप्पी विद दैट, एंड जो कॉन्फिडेंस लैक कर गया था वो आया, एंड शी वाज कंफर्टेबल इन इट विद द लास्ट मोमेंट। यस, ऑन दिस आई वांट टू से कि 38 को है ना कल्चरल कॉस्ट्यूम का शूट था वहाँ पर। सो वी वो वॉल्टियर ऑन 30th ऑल्सो, 30 एंड 31st, इन 2 दिन हम लोग वहाँ पे वॉल्टियरिंग के थे। तो ऑन 30th ऐसा था कि कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहनी है जो इंडिया से रिलेटेड होगी, कल्चरल का शूट था। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एंड वी वर लैक ऑफ हेयर पिन्स। सो एक मांग टीका मेरे को लगाना था एक कंटेस्टेंट को, एंड शी वाज लाइक प्लीज़ जस्ट पुट इट ऑन माई हेड, मेरे को ये मतलब लगाने का बहुत मन है प्लीज़, एंड ओनली 5 minutes वर लेफ्ट। सो मैंने उस टाइम पे आस्था से हेल्प ली थी कि आपके पास हेयर पिन्स अवेलेबल होंगी तो प्लीज़ जस्ट लेट इट वन टू मी। तो उस टाइम पे मैंने उनसे एक पिन ली और मैं जस्ट बैक स्टेज गई उनके पास जल्दी से, एंड शी वॉज सिटिंग जस्ट सैडली शी वॉज सिटिंग ओवर देयर कि मुझे वो लगाना ही था, एंड देन आई जस्ट पुट इट ऑन हर हेड एंड शी जस्ट हग मी ओवर देयर। सो हाँ, ऐसे थोड़े मोमेंट्स थे जहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगा कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं जो हम जिसके लिए आए हैं, जो हमको करना है, हम इनको हैप्पी भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। सो या देयर वर मोमेंट्स। And also, I remember we were handling this last minute chaotic alteration thingy because last minute पे alterations बहुत सारे आगे से आ गए थे, तो yes, like और हमें massive events जो होते हैं वहाँ तो होता ही है। yes, exactly. So we were handling this and हमें last minute, like we were having these 5 last minutes for the lineup, so we were all like do it fast and all. हाँ, Wonderful. You styled national costumes for some major contestants. Which country's costume, in your opinion, truly had that wow factor into it? आई थिंक थाईलैंड, बिकॉज उनके जो नेशनल कॉस्ट्यूम था वो बहुत ही सुंदर था। सो डेलिकेट पैटर्न्स थे और जो डिटेलिंग वर्क था वो था गोल्ड में पूरा, एंड उनका 2 piece था, लाइक आई स्टिल रिमेंबर। उनका नीचे का एक ना पैंट टाइप था एंड ऊपर एक ना लॉन्ग गाउन टाइप था, थोड़ा लाइक अनारकली टाइप जो भी होता है वो, और एक हेड गियर था उनका, बहुत डिटेल वर्क था उस पर, ड्रैगन टाइप था थोड़ा, बहुत सुंदर था। और जो कूल टोन था उनका ब्लू एंड वाइट, एंड फैन भी बहुत सुंदर था उनका, जो हैंड फैन था Okay. वो था बहुत सुंदर। So it was Thailand for you. Yeah. And for you? For me, it was Venezuela. Yeah, she was looking so pretty on that day. I still remember. मतलब उनका गाउन इतना मतलब ज़्यादा वो नहीं था कि एकदम डिफरेंट ही हो किसी से। It was simple, but उसमें जो beads work था ना पूरे गाउन पे, टोटली फुली गाउन पे, इट वॉज सिंपल, बट उनको ऐसा करना था कि उसको एलिगेंट कैसे करें। सो मतलब उन्होंने जो बीड वर्क किया था, एंड शी वॉज लुकिंग जस्ट सो प्रिटी इन दैट गाउन। आई स्टिल रिमेंबर दैट गाउन, एंड फॉर मी वेनेजुला, इट वॉज वेनेजुला। Okay. So my next question to all of you is, working with international models and designers must have exposed you to different fashion styles. Did you experience any sort of cultural shock or any unexpected style inspiration that surprised you a bit? Yeah, so in perspective of mine, I observed this detailing. Every garment have this deep detailing, and it was so charismatic. I remember this dress from Egypt, and that participant came, and I was working as a backstage assistant manager, so she came and she was like, oh, how I'm looking, and I was like, so charismatic, you're looking like a goddess. So I saw this, I observed this detailing thingy because it was so fascinating. Okay. So Yeah. detailing. Yes. And
Anything else? For me it was the color combination. Color The way combination. they are wearing the color combination, मतलब जो हमने एक इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि इस कलर को इस कलर के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा निकल के आएगा, अच्छा निकल के आएगा या नहीं निकल के आएगा, बट दे जस्ट bring it on the 2025 Miss World, and it was just looking so fabulous. Apart from that, the embroidery work, as I said, वेनेजुला की भी बहुत एम्ब्रॉयडरी थी जो उन्होंने बीड्स के साथ करी थी. नॉट ओनली हर बट देयर वर मैनी जिन्होंने बीड्स के साथ अपनी एम्ब्रॉयडरी करी थी, फेदर्स के साथ करी थी. बहुत डिटेल्ड वर्क था, सब में बहुत डिटेल्ड वर्क था एक्चुअली. एंड द बेस्ट वार्डरोब वाज फ्रॉम आई रिमेंबर अमेरिकाज वार्डरोब. Yeah, the heavy कल्चरल frocks. फिट्स वर जस्ट लाइक वाओ एट दैट Absolutely टाइम. amazing. मतलब इतना सारा बीड वर्क, उसके साथ इतना सारा उन्होंने दिमाग लगाया कि किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन लेके आने हैं, और थाउजेंड्स ऑफ कलर्स वर देयर इन देयर आउटफिट. मतलब इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल. अमेरिकाज वार्डरोब वाज जस्ट सो ब्यूटीफul for me. The concept Yeah. of wearable art, that we listen the wearable art, Yes. वो exposure जो होता है ना वो वहाँ अमेरिका का देखा हमने. wearable art होता क्या है, तो so वो we एक enjoy बहुत it a lot. डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था हम लोगों Yeah. के लिए, जो हम नहीं सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है. तब हमें पता चला कि नहीं, ये भी हो सकता है, हम ये भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं इसको. तो फ्रॉम वेयरेबल आर्ट एक कंटेस्टेंट थी केमन आइलैंड से, जो उनका पूरा कॉस्ट्यूम था, आउटफिट था, वो पूरा एक सी क्रिएचर्स से रिलेटेड था. Sea creature. यस. Yes. तो उनका वो मतलब लाइक अपने आइलैंड को एक अच्छे से एक्सपोजर दे रहे थे, अच्छे से लाइक सी एनिमल्स एंड ऑल दे डिस्प्लेड ऑन द कॉस्ट्यूम्स. तो उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम के मीडियम से अपने आइलैंड को एक ट्रिब्यूट दे दिया. Yes. Yes, and she was wearing this massive hat, headgear. like big hat, and she was like, it was so good, and वो एक purpose बता रहा था उनकी dress का. So yeah. Beautiful. Was there a moment, maybe a compliment from a contestant or recognition from the organizing team, that made you stop and think, I finally made it? Something you will never forget. आई थिंक ऑन दिस वन आई विल से मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं था एक तरीके से वो, बट हाँ ऐसा था. आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई चेयर, आई वॉज वेटिंग फॉर माई contestant who was Miss Nandini ma'am, Miss Nandini Gupta. And after completing everything on Miss World stage, she just come backstage and she just for a little moment she smiled at me, and she just came and hugged me so tightly and started crying on my shoulder. And that was the moment कि जहाँ पे मेरे को लगा कि I think I have made it. क्योंकि उससे पहले हम लोगों की इतनी कन्वर्सेशन हुई थी कि कोई बात नहीं मैम, आप कर लोगे, यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी चले जाओगे, इतना स्ट्रेस मत लो. आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, बिकॉज वो एक ऐसा मोमेंट था. शी जस्ट कम एंड हग्ड मी सो टाइटली एंड स्टार्टेड क्राइंग ऑन माई शोल्डर. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उनको एक स्टिकी नोट भी दिया था लिख कर कि मैम यू डिड सो ग्रेट एंड आई जस्ट लुक अप टू यू, आई फील सो प्राउड, थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग अवर कंट्री. इस टाइप से मैंने एक नोट दिया था एंड शी जस्ट पुट इट ऑन हर स्टोरी. दैट टाइम आई रिमेंबर कि मैं एयरपोर्ट पे थी एंड आई डोंट नो मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ, कैसे रिएक्ट करूँ. आई जस्ट मेरे आंखों में इतना आंसू हो गए थे. आई जस्ट फेल्ट सो इमोशनल क्योंकि मैंने जस्ट उनको ये बोला था मैम आपके बैग में एक नोट है, प्लीज़ आप देख लेना उसको. दैन शी सेड फॉर श्योर लव आई विल. So that was the moment I never want to forget in my life. Beautiful, beautiful. Was there a point where you truly felt more like a professional rather than a student? Tell us about that moment. Oh yes. There was the moment as I was working as a backstage assistant manager. So there's this like whole backstage thing I was controlling, and with like many volunteers also. And it was like okay, now I have to give instructions also, like team management, communication. कोई भी communication gap नहीं होना चाहिए, सारे volunteers को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उनकी एक particular duty क्या है. So yeah, at that moment I felt like okay, I am kind of professional, I'm not a student, and it was so like it excites me a lot. So yeah, it was a good experience for me.
आई थिंक ऑन 30th हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने सारी कॉस्ट्यूम्स उनको स्टाइल कर दी थी एक्चुअली, बट फिर बाद में हमारे पास ड्रेपिंग के लिए साड़ीज आई थी, तो हमको वो ड्रेप करनी थी उनके ऊपर. एंड एट दैट टाइम हमारे पास सिर्फ ड्रेपिंग मैंस वर ओनली टू और थ्री वर देयर, या ओनली 2 and 3 वर ड्रेपिंग मैंस वर देयर, एंड दे वर बिजी इन इंडिया एंड ओशियाना, क्योंकि वहाँ पे ड्रेपिंग बहुत होती है उनका, बिकॉज लहंगा था ऑफ कोर्स, एंड अमेरिका वॉज लेफ्ट आउट, एंड वी ऑल वर हैंडलिंग अमेरिका. एंड लास्ट मिनट पे ऐसा हुआ कि हमको वो सारी साड़ीज दी ड्रेपिंग के लिए, एंड वी ऑल स्टार्टेड ड्रेपिंग इवन दो वी वर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वी स्टिल डिड. एंड दैट टाइम हमने उनको इतना सुंदर तरीके से ड्रेप किया था. एट दैट मोमेंट आई थिंक हम लोगों ने बेस्ट दिया था अपना. दैट वाज द मोमेंट हमने जो अपना सबसे बेस्ट दिया था वहाँ पे. वही मोमेंट था जब आपको एक फील हुआ कि दैट यू हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टूडेंट टू प्रोफेशन. या Okay, wonderful. If someone from a small town is watching you right now, what would you like to say to them about believing in your dreams and choosing fashion as a career? Yeah, coming from the small town itself, it's been a great opportunity for me to be the part of the Miss World 2025 event. I enjoyed a lot, and being the volunteer there and to work with the designer Archana Kochar ma'am, I will proudly say that dream big. Dream big as much as you can possible. Every dream is valid and it will came true. So dream big. आई वॉन्ट टू टेल दैम कि कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड पैशन और क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है. सो यू नीड टू ड्रीम बिग. थैंक यू. तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता. सपने देखो, और सपने देखना अच्छी बात है. मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिस वर्ल्ड का इवेंट अटेंड करूँगी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने मिस वर्ल्ड का इवेंट अटेंड किया और मेरा सपना तो पूरा हुआ, मतलब लगभग. अभी तो बहुत कुछ बाकी है, सपने बहुत सारे हैं. तो मैं यही कहूँगी कि सपने देखो, और सपने देखना अच्छी बात है. Great mindset. Moving towards the last question, what message do you have for aspiring fashion designers listening to this podcast who hope to get an opportunity like this someday? Let's start with you. Okay. So it's like feel free to do whatever you want to. Be confident. Be creative. And don't be scared of judgment. At the end of the day, people will judge you. Yes. Whatever you are doing for that. And it's like ignore all the negative people, negative comments, negative things which is happening. Just focus on yourself, because of course when you will focus on yourself, you can focus on your career, you can focus on your dreams. So yeah, Definitely. You have to be focused on your goals, and you have to be a very hardworking person and be innovative in your field. Thank you. आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, मतलब लोगों को इतना नहीं सुनना है. जो आपको दिल से करना होता है ना, जिसमें आपका खुद का पैशन छुपा हुआ है, उसको फाइंड आउट करो, उसे ढूंढो और उस पर काम करो, और हमेशा पॉजिटिव रहो. एक्चुअली हम सब वो बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया होगा, कहीं ना एक बार तो फोर्स किया ही हुआ कि यू शुड ट्राई गवर्नमेंट जॉब, और यू शुड डू दिस. मतलब इस फील्ड में मत जाओ, तुम्हारा क्या ही काम है इस फील्ड में, तुम इस फील्ड में जाके कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्या ही कर लोगे. और मेरे को तो ये तक कहा है कि कपड़े ही तो सिलने हैं तुझे, और क्या करना है. तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, नॉट फोकस ऑन कि लोग क्या कह रहे हैं. लोग तो बोलते हैं, उनका काम है बोलना. तुम जितना इग्नोर करोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे. टुडे मैंने भी अपने ऊपर इतना बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ. सो आई एम हियर टुडे एंड गिविंग द पॉडकास्ट ऑल्सो एंड डूइंग जस्ट ग्रेट इन माई लाइफ, क्योंकि मैं फोकस कर रही हूँ अपनी चीज़ पे. सो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, नॉट व्हाट अदर्स आर सेइंग. Just stay focused, be passionate, be yourself, and be experimental, because designing is all about experimenting with garments and with outfits, everything that. Okay, wonderful. So tell us about your entire experience there. so it was like I've learned so many things. How to prepare the alternative things. if अगर कुछ missing है तो हम उसको कैसे replace कर सकते हैं with the alternative things. And also the team management, team communication, and also this whole experience was so good, because I've learned like there's too many languages. So languages
fascinates me. So yeah, तो मैंने देखा कि हाँ different countries हैं, different languages हैं, different way of talking है, different tones है. तो I've learned that. And also I'm a person who doesn't even know how to cross a road. So I traveled with my friends and teachers. So I felt so good, and it was a wholesome experience for me. And of course I made my parents proud. Of course they are. And yeah, and thanks for vice chairperson ma'am, that she thought that we are capable for this opportunity, and she provided us this opportunity. And I'm really thankful for ma'am and for college. Thank you so much for providing this opportunity, and I'm so grateful. What I learned from this journey is from managing myself to managing the backstage for the event. About my experiences, I learned a lot that how to manage the last time things. Any work come at any time, you should be ready for every work. तुम्हें कुछ भी काम मिल सकता है और तुम्हें तैयार रहना है. इट वॉज फॉर द ड्रेपिंग, लास्ट टाइम चॉइस, हेयर स्टाइल और एनीथिंग दैट द कंटेस्टेंट वांट, you should be ready for the work. Talking about my journey in those 2 days, वो मतलब मिक्सड ऑफ इमोशंस रही थी. मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ ही आ रहे थे. डर भी लग रहा था, एक्साइटमेंट भी हो रही थी, ये भी दिमाग में आ रहा था कि कैसे होगा वहाँ पे जाके, क्या करना होगा, कैसे नहीं करना होगा. मतलब एक दिन तो बैठ के हमने सोचा था कि कैसे होगा वहाँ पे जाके, कैसे लोग मिलेंगे हमको, मतलब किस तरीके से बिहेवियर रखेंगे. और हमको है ना एक्चुअली बहुत लोगों ने ऐसे भी बोल दिया था कि वहाँ पे बहुत रूड लोग होंगे, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑन दैट. तो हम और डर गए थे. बट थैंक्स टू अवर वाइस चेयरपर्सन मैम, उन्होंने हमको बुलाया, रूपल मैम ने अपने ऑफिस में, उन्होंने हमें समझाया, उन्होंने हमें चीज़ें बताई कि यू डोंट नीड टू बी स्केर्ड, जो करना है शांति से करना. और क्या कहते हैं, तुम किसी से कम नहीं हो, वहाँ पे जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे बहुत बड़े ही लोग हैं, तुम यही सोच के जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर ऑल्सो अ डीवा इन यू. सो आई थिंक बहुत मिक्सड ऑफ इमोशन एक्सपीरियंस रहे थे. एंड टॉकिंग अबाउट माई लर्निंग थिंग्स, वहाँ पे जो इंसान मतलब घर से बाहर नहीं निकली थी, एंड शी इज़ गोइंग हैदराबाद विदाउट हर फैमिली एंड स्टिल मैनेजिंग हर. बट वहाँ पे जाके हमको हमारे 2 टीचर्स थे, शिवानी मैम एंड राहुल सर, दे बोथ जस्ट हेल्प अस अ लॉट ओवर देयर. सो आई वांट टू थैंक दैम टू फॉर जस्ट हेल्पिंग अस एंड जस्ट स्टैंडिंग विथ अस each and every step. और लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो देयर वर लॉट ऑफ लर्निंग. फर्स्टली लैंग्वेज वॉज समथिंग जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें फ़ेस की थी. हम सब ने, मतलब एक्चुअली मैंने ही नहीं, हम सब ने बहुत मुश्किलें फ़ेस की थी. तो वहाँ पे हमने साइन लैंग्वेजेस यूज़ करी थी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर ड्रेपिंग थिंग्स, हम लोगों ने ड्रेपिंग भी लर्न करी थी वहाँ पे. बहुत मतलब एकदम हमको एकदम से सामान दे दिया था, देन वी वर जस्ट ड्रेपिंग ऑन दैम. तो हाँ, हम लोगों का एक्सपीरियंस वर वेरी गुड ओवर देयर, नॉट ओनली मी बट सबका. सो मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही था. फ़्लाइट में बैठने से लेकर वहाँ पे काम करने तक, जो ड्रेपिंग करी, मेरे लिए ड्रेपिंग बिल्कुल न्यू थी. तो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया और जो हुआ मैंने वो किया और उनको फिर भेजा स्टेज पे. तो ड्रेपिंग बहुत अच्छी हुई थी और जो भी मतलब काम था पूरा बहुत अच्छे से हो गया. एक्चुअली ड्रेपिंग हम सबके लिए ही न्यू थिंग थी, बिकॉज वी आर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और अभी हमारी ड्रेपिंग क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी एक्चुअली. बट स्टिल हमने वहाँ पे जाके जो ड्रेपिंग की थी, और आई स्टिल रिमेंबर कि हम अभी कल ही रूपल मैम से जब मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने बोला था द ड्रेपिंग्स वर सो गुड, आई हैव सीन दैम, आई हैव सीन दैम, सो दे वर सो गुड, वेरी गुड वर्क. एंड शी ऑल्सो गिव अस अ टाइप ऑफ मतलब अप्रिशिएशन दैट येस यू हैव done a very good job. मतलब जो हमने सोचा था ना उससे एकदम डिफरेंट ही एक्सपीरियंस रहा था हमारा. And I like to add on that we got to handle so many people with different mindsets, which was very important for us to, you know, somewhere at some point we got to know that there are so many people with different mindsets. Okay, इनका mind ऐसे work करता है, ये thought process ऐसे हो रही है, बैक टू बैक चल रही थी चीज़ें. So tell me about your experience there. Talking about my experiences, I learned the teamwork, the real meaning of teamwork I learned there, the communication skills, how to communicate and how they will understand what I am or what they want me to understand.
एंड वॉट आई लर्न देयर वॉज इतने क्रॉस एनवायरनमेंट के अंदर सब कुछ मैनेज करना और ख़ुद को काम रखना एंड सबसे पोलाइटली बात करना सो दे विल फील कंफर्टेबल विद अस. और टीम वर्क ऑल्सो द की एंड द कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट देयर. So Divya, you've got the opportunity to actually assist the winner of Miss World 2025. How was your experience like? सो सबसे पहले तो वो बहुत हम्बल थी एंड बहुत कॉन्फिडेंट थी वो अपने काम को लेके. वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी, अपना आउटफिट चेक कर रही थी, अपना हेयर चेक कर रही थी और सब बहुत परफेक्टली कर रही थी वो. और सबसे मेमोरेबल थिंग ये थी कि वो आते ही जब वो जीत के आई तो उन्होंने मेरे को हक कर लिया और मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया. और बस ये एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा था जो कि. Great. If you have to describe your experience in just a single sentence, what would that be? Thank you so much, Podar International College, for this opportunity. Thank you so much to all of you to share your experience with such honesty and grace. And to the viewers who are watching, thanks for tuning in. Keep dreaming high and keep designing. Until next time, this is Aryan Purohit signing off.